We will try to cover these concepts, including overfitting, generalization, and cross validation. What is overfitting and what is generalization? So, for example, you have this data set. So what do you think, which order polynomial will be best for the data? You have already studied polynomial model, regression model, which in which you draw a plot for the given data, and you say that this is first order model, this is second order, and this is third and onward polynomial or model. So for example, if this is the data set, so what do you think which polynomial order will be best for this? It might be this one, seems like it is overfit, maybe linear model, maybe some kind of high order polynomial which covers each data point like this. So this is actually could be, suppose that could be a model for this given data where x and t are the dependent and independent variables from 0 to 1 and some scale on less than 1 to less than minus 1 to 1 or onward. So overfitting or versus generalization, some more concept. For example, this model is the model which has the least error as much as possible could be the answer for, could be the model for this data set. So if we choose linear model, so linear order means your nth order is 0. Linear order means y is equal to straight line, some constant value. 0th order polynomial, some constant value. For example, you say that when x increases, y will be equal to 0.2. So it will give you a straight line or a constant line. So this is called 0th order polynomial regression. That could be one solution for that. We will try or we will analyze either this model is best fit for this or not. So what do you think? Is this best one for this for these data points? I don't think so. It would be the best model for this. So we try first order polynomial regression. First order polynomial regression, the solution would be straight line which covers sum of the points with m is equal to 1, where m shows the order of polynomial. So first order polynomial means linear equation. Okay. So among this 1 and 2, 2 is more better than 1 because it covers some of the points and it gives less error. So our concept is to reduce the error between the predicted one and the actual one. So the second model gives much better result compared to 1. So we say that 2 is more better than 1. How about this one? The model which covers each point of the data set. That could be ninth order polynomial. Ninth order polynomial means x power n, where n is equal to 9. X power 8, x power 7, and so on, up to x plus 1, something like that, or it's constant. So that is nth order, ninth order polynomial regression. So what do you think? Is this the best one among all? Because it covers all points of the data points or data sets. This may be the best because the error is 0. This model actually gives you 0 error, which means 100% accuracy on training data.
Okay, but is this best for some unknown point or unknown data? We don't know. Do you agree with this? That this model will be the best one among all because of the zero error on training data? We don't think so. So what is the purpose of machine learning? The purpose of machine learning could be two. What do you think? Learning the given data as exactly as possible, or for example, this one is learning the exact data, the exact given data as training. So is this machine learning or predicted the unknown data as exactly as possible based on the given data? So what do you think? Which will be the what is the machine learning definition? So it is actually predicting the unknown data as exactly as possible based on the given data. So you give some data to a machine learning system. That machine learning system learn data, and that that is used that model to be used for unknown data's prediction. So that is actually the purpose of machine learning, to predict the unknown data as exactly as possible based on the given data as compared to the learning the given data as exactly as possible. So that is zeroth order, this is one first order, this is third order, and this is ninth order. So what do you think? Which will be the best? One, two, three, or four? Four give you zero error on training data, but seems third one gives us more good result, or more result with less error, more good result with less error compared to the second one and first one. So apparently model 3 is giving us more better result on unknown data. So this actually uh, okay, so then which one looks best? As the order increases, the complexity of model increases. So for example, complexity means the computational power, the use of computational power, that is called complexity. So if the order of the model is increases, the complexity of solving that model also increases. Not only by computation, but also if you try ninth order equation and you are setting to solve that equation, it will cost you much time as compared to the lower order polynomial equation. So as the order of the model increases, it increases the complexity of the model. So as the complexity of model increases, the model can more exactly learn the given data, as you can see in this case. However, the prediction accuracy does not necessarily increases. So this model doesn't guarantee you the learning of the prediction accuracy, or the improvement of prediction accuracy, because it might learn the training data, but it might might not learn your unseen data, or so it might give you poor result on the prediction of unseen data. So which model is best? You may try several approaches and need to choose one. So you might set and check your training and testing, and then after that you decide that this model, for example, model 3 is better. You may try several parameters of, so you have two things. One is several approaches and need to choose one. Several approaches means you first test, train and then test, and then change the parameter of training and testing. So you may try several different parameters of a model and need to choose one. You try different parameter and you try different approaches. Then based on that, you conclude that this model is better. Model evaluation means
based on training and testing data set. When you apply some training based on the given data, and then you divided the data set into training data and testing data, and after training on training data, and then check that on testing data. If the result is better in both of the cases, then that this is your best model. Then there comes cross validation. So we will see in a bit detail. So for example, if you have a data set and you divide that into training set and testing set. So question raises how to choose a good model. So what you do? You first divide the given data into training set and testing set. Training set and test set should not overlap each other. Your test training set and test set should be separated from each other. It will not be allowed to intermix. That's how you will check the performance of your machine learning model. Second, both need to be independent as much as possible. They will not be allowed to overlap, and they will be made independent so they do not mix up with each other. With training set, build various model. So you will try to build various models based on this training set. And with test set, with with test set, evaluate each model. For example, you make model one. As in the previous cases, you have tried four models. Model one for training data, and then you apply the test data. So if the result of training data and test data both are accurate, then you choose that this model is more accurate. So with test data, you actually evaluate your each model design. After that, you choose the model which shows the best performance with test data. So actually, that is the test set or test data which gives you the final conclusion of choosing your model. So if you could see at this image, it shows that data to be divided into training set and testing set. And they are not allowed to intermix. So then question raises how to choose a good model. First, you randomly split training set into n testing set. Randomly split this. For example, you said that 10% data is 90% data is given to training set and 10% data is given to testing set. But you randomly actually split that. Randomly splitting means your 10th might be given as 1 for test set and your 11 might be in the training set. Ninth value and 11th value, 10th value and 11th value. So after splitting into training set and testing set, next uh, next is model building. So you try different model, for example, constant model, linear model, nth order model. And then you test, use your test set to check your model and evaluate its performance. So when you draw your order of polynomial versus the root mean square error, root means square error, then you observe, look at this graph keenly because it gives you much information. As the order of the model is increases, so your training error might lead to 0, but your testing error, the outcome of the test data set might give you
100% error. So it means the gap between both of these results is quite high. But if you see lower model, lower polynomial model, for example, if you check m is equal to 3, you see that the difference between testing and training set is quite low. So based on this, and as the order increases, your gap between training set and testing set, the outcome or the error based on training set and testing set is actually increases. So you the check the error on training set and testing set, and you decide based on the error parameter of both data set, your training set and your testing set. So that is actually the problem. And this is actually called, not non-generalization when the order is increases. So it gives you the other name of non-generalization. There are two. One, if your model is generalized, either your model is generalized or your model is not generalized. If your model is generalized, it means it gives you better result on training set and testing set. But if your model is not generalized, it means it might have two problems. One is called underfitting and second is called overfitting. So underfitting means your result does not give you good performance on training set. And your overfitting means your result on training set is around 100%, but your result on testing set is around 10% or near to 0%. So this gap between the training set, the performance of training set and testing set actually gives you the conclusion that model gives you this model is overfitting. So then question raises how you decide the size of test data set or test set. So probably your test sets would range around 30% of the total data set, or might be 50%. So if your data set is small, then you give around 70% of your data to train your model. And the remaining 30% of your data would be chosen for evaluating your model. Advantages: simple and easy because it gives you the conclusion that which model is better for your data set. Disadvantages are this test set is not used for modeling building waste of data. So because this data set, the test set to be single out from your data set while you train your model, but because test set is just used for evaluation. So this is a kind of waste of data because you do not uh, reflect that you do not give this data to your model. So it is a kind of waste of data because that is not a part of your model. But importance is that it gives you actually the conclusion that your model is how much better model of yours is. So then data is randomly split. That is this advantage. So you don't know. It might give you bad performance because you randomly divide your data into test set and training set. Evaluation can be significantly different depending on data split. So when you randomly split your data, it might give you bad result because of the random distribution. So bad data or the anomalies might be given to the testing set. So if major of the anomalies are given to the testing set, so it will give you poor result.
So any good idea or any solution for that? What do you think? What would be the solution for this kind of problem? फर्ज करें आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें एनोमलीज है 10% एनोमलीज हैं. एनोमली से मुराद ये है कि वो जो आपके पास डेटा है उस नेचर का जो डेटा है उसका एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है या उस नेचर का ही नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेड और ब्लू बॉल हैं या रेड बॉल्स हैं और उसमें से कई से ऑरेंज बॉल्स आ रहे हैं या ग्रीन बॉल्स आ रहे हैं, तो दैट इज़ आउट ऑफ योर नेचर ऑफ द डेटा, सो दैट इज़ कॉल्ड एनोमली. सो फर्ज करें आपके पास आपने 30% डेटा रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए, तो अगर आपका जो सारा डेटा है जो 20% एनोमलीज है वो टेस्ट सेट में अगर चला गया तो इट विल डेफिनेटली गिव यू wrong evaluation or bad evaluation. So how to solve the problem? How to solve this problem? Any good idea? जी. Sir, we will pre-process the data first. How? What does that mean? मतलब हम ट्रेनिंग से पहले डेटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें अगर कोई मिसिंग वैल्यूज या रिडंडेंट वैल्यूज आती हैं तो उनको रिमूव करेंगे. अच्छा, what is the difference between anomalies and redundant data or empty values or none values? सर बेसिकली इनॉमलीज जो है ना, हम मोस्टली मशीन लर्निंग की टर्म्स में जो है ना आउटलायर्स को भी कंसिडर कर रहे होते हैं कि आउटलायर्स जो है ना हमारे पास इनॉमलीज हैं. हर वो डेटा पॉइंट्स जो Q3 प्लस Q3 प्लस 1.5 IQR की वैल्यू जो होगी ना, वो हम डेटा सेट से मोस्टली इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, समहाउ हम करते भी हैं. ये हमारे पास अपर आउटलायर होता है, कुछ लोअर आउटलायर्स होते हैं. वो होते हैं कोई डेटा वैल्यू है वो 1.5 Q1 प्लस 1.5 IQR हो, तो वो हम हमारे पास लोअर आउटलायर है या लोअर एनॉमली है, तो हम उसको भी कंसिडर मोस्टली नहीं करते. लेकिन समहाउ हम उसको भी कंसिडर करते हैं बेस्ड ऑन हमारे करंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिसकी बेस पे हम उसको भी अगेन कंसिडर करते हैं. So एक्चुअली जो नज़र कह रहे हैं ना वो तो डिफिनीशन बता रहा है कि आप किस चीज़ को एनोमली कहेंगे. तो जब आप एनोमली फाइंड करते हैं, जो इस तरह ये बता रहे हैं कि आप इस फार्मूले से फाइंड करते हैं कि इसका जो अगर इस थ्रेशोल्ड में आ रहे हैं तो वो एनोमली है, अगर नहीं आ रहा तो वो एनोमली है, लोअर एनोमली है और अपर एनोमली है. बट मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस प्री प्रोसेसिंग और का डिफरेंस और आउटलायर या एनोमलीज का मैं बता रहा था. एक्चुअली प्री प्रोसेसिंग डजंट मीन दैट इज आउटलायर और समथिंग एल्स. प्री प्रोसेसिंग मीन्स आपने जो एम्प्टी डेटा है या आपके पास अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि ऑलरेडी डिफाइन नहीं है, उसमें ब्लैंक है, उसमें नंबर की बजाय टेक्स्ट आ गया, तो इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग कि आपने वो डेटा उससे रिमूव करना है या उसकी जगह कोई वैल्यू डालनी है, उसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग. ठीक है. और एनोमलीज जब आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि हमारा जो एनोमली मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है वो 5.3 से लेकर 6.0 आपके पास है 6.0 फीट है. ठीक है, ये हाइट है स्टूडेंट्स की. तो अगर आप कहें कि एक स्टूडेंट आता है उसका हाइट जो है वो 3 फीट है, तो दैट इज एक्चुअली आउटलायर बिकॉज ये एक एवरेज से काफ़ी नीचे है आपके उसका जो डेटा सेट का नेचर है वो उससे कम है. या फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एक बंदा आता है वो कहता है उसकी हाइट जो है वो 8 फीट है. अब आपका जो रेंज है वो 5.2 इंच से लेकर 6.0 तक है, बट आपके पास अगर 8 फुट का बंदा आ गया तो दैट इज एनोमली. सिमिलरली आप अगर कहते हैं कि जो हरीपुर का टेम्परेचर है दैट इज एनुअल टेम्परेचर दैट इज अराउंड 20 डिग्री से लेकर आपके पास 40 डिग्री तक है एनुअल टेम्परेचर. बट आप फिर ऑब्जर्व करते हो कि किसी दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और टेम्परेचर बिलो दिन ज़ीरो चला गया और 0 डिग्री आ गया, एंड किसी गर्मी में एक ऐसा टेम्परेचर भी आया जो कि 50 डिग्री तक पहुंच गया. तो जो आपका एनुअल डेटा है दैट इज 20 to 40 डिग्री,
बट अब आपके पास 0 भी आ गया और आपके पास 50 भी आ गया. So these values are actually outliers. So the outliers might be from some wrong data or something, might be true data, but that is not the actual or the regular pattern, but that is irregular pattern in data. इसको एक्चुअली आउटलायर कहते हैं या इसको एनोमली कहते हैं. ठीक है, क्लियर है पॉइंट. प्री प्रोसेसिंग ऑन अदर साइड, प्री प्रोसेसिंग एक्चुअली आप डेटा में से अगर आपके पास कोई नंबर न्यूमेरिक डेटा है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आपका डिग्रीज में है 20 डिग्री 30 डिग्री, बट उसमें कहीं लिखा हुआ है अंग्रेजी में 40 लिखा हुआ है, तो अगर आप उसको प्लॉट करेंगे तो 40 विल नॉट बी कंसिडर एज 40, बट दैट विल बी ए काइंड ऑफ, so you need to correct that 40 to 40. Similarly, अगर किसी दिन का टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर ख़राब हो गया तो उस दिन का डेटा नहीं आया, तो उसमें लिखा होगा कि माइट बी नल डेटा और एन डेटा. तो इस तरह के जो डेटा सेट में आ जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है मारिया, तो डिफरेंस आपको पता चल गया नॉर्मली और प्री Yes, sir. प्रोसेसिंग. ओके, सो कि हम इसमें जब ट्रेनिंग में डेटा को क्लीन कर रहे हैं तो हमने एनोमलीज को रिमूव करना होगा. नहीं, प्री प्रोसेसिंग में एक्चुअली आप डेटा सेट को देखते हैं कि मेरे प्री प्रोसेसिंग में मेरा कौन सा कॉलम यूज हो रहा है, कोई ऐसी वैल्यू तो मिसिंग नहीं है, या फॉर एग्जांपल नंबर की जगह अल्फ़ाबेट आया हुआ है, या फॉर एग्जांपल अगर किसी का हाइट है वो हाइट होगी ना, उसकी कोई वैल्यू, किसी का हाइट 0 तो नहीं हो सकता ना. ठीक है, तो अब 0 अगर आ गया, 0 हाइट आ गया, तो इसका मतलब है कि ये प्री प्रोसेसिंग में ये चीज़ रिमूव होनी है, ये करेक्ट होना है. या अगर किसी बंदे का हाइट 200 फीट लिखा हुआ है, तो ये 200 फीट तो ह्यूमन नहीं हुआ ना, तो कोई दरख्त का हाइट आ गया उसमें कहीं. तो इस तरह की चीज़ों को रिमूव करने के लिए आप प्री प्रोसेसिंग करते हो. ये नॉर्मली भी हो सकती है और ना नॉर्मली भी हो सकती है, बट तो जो मेरा मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर आपका सारा इर्रेगुलर डेटा, एनोमली के अलावा भी इर्रेगुलर डेटा एक किस्म का पैटर्न, तो फॉर एग्जांपल आपके क्लास में हमारे क्लास में, हमारी यूनिवर्सिटी में एवरेज हाइट आ रहा है 5 फुट से लेकर 6 फुट तक. ठीक है, लेकिन जब आपने डेटा डिवाइड किया इनटू 2 सेक्शन, टेस्ट डेटा एंड ट्रेनिंग डेटा, तो आपका सारा जो 5 8 to 6 फीट है वो सारा टेस्ट सेट में चला गया, और बाकी डेटा आपका 5 फीट से लेकर 5 8 तक आपका रेंडमली ट्रेनिंग सेट में चला गया. तो इम्बैलेंस ऑफ डेटा आ गया एक्चुअली. ये इम्बैलेंस ऑफ डेटा आपको एक्चुअली जो मॉडल आपकी एवोल्यूशन इसी तरह डिसीजन करने नहीं देता, क्योंकि ये मॉडल आपको पूरा रिजल्ट देगा. तो इस चीज़ को जो इरेगुलरिटी रैंडमनेस की से आएगी, वो एक्चुअली हम ये डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है. इम्बैलेंस डेटा को ठीक है, बैलेंस तो करना है. जी, तो इम्बैलेंस रैंडमनेस की जब बात आती है तो आपके पास इम्बैलेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा आ जाता है. ठीक है, रैंडम स्प्लिट की वजह से. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि जो इम्बैलेंसिंग ऑफ डेटा आ रहे हैं, तो इसका क्या करते हैं. तो आप क्या करते हो, आप इसको, जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर, जब हमारे पास डेटा सेट में इम्बैलेंस क्लासेस आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर एक क्लास की बहुत ज़्यादा इन ऑब्जर्वेशंस हैं, दूसरी क्लास की कम ऑब्जर्वेशंस हैं, तो फिर हमें उसको जो है ना नॉर्मली बैलेंसिंग की तरफ कोशिश करते होते हैं, और बैलेंसिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं. कुछ रैपर मेथड हैं जिसमें हम उनको जो है ना इम्बैलेंस को सेट करते हैं. उसका प्रॉब्लम डिसएडवांटेजेस ये होता है कि हमारे पास एक्यूरेसी जो है ना, फिर हम एवेल्यूएशन मैट्रिक्स एक्यूरेसी को कंसीडर नहीं करते. उसमें हम प्रिसीशन और रिकॉल्स या F1 स्कोर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी उसके ऊपर इम्बैलेंस डेटा सेट के ऊपर हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एक्चुअल में परफॉर्मेंस उसकी कम होगी. एग्जैक्टली, तो ये एक्चुअली डिसएडवांटेजेस है आपके इम्बैलेंस ऑफ डेटा का. और इसी इम्बैलेंस ऑफ डेटा के लिए हम मेथड ढूंढेंगे कि इस डेटा को हमने डिस्ट्रीब्यूट बैलेंसली, या बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की बैलेंसिंग हमने कैसे करनी है.
तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम डेटा को दो मुख्तलिफ रेंडमली दो मुख्तलिफ जगहों पे स्प्लिट करें। फॉर एग्जांपल आपका डेटा है 100 डेटा है, उसमें आपने 20% डेटा जो है वो टेस्ट के लिए रखा है और 80% आपने ट्रेनिंग के लिए लिया हुआ है। तो पहले स्प्लिट में आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल पहले जो 1 से 20 तक पहले वाले हैं वो आप टेस्ट के लिए रखते हो। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हो सकता है पहले 5 हो, फिर सेकंड उसमें 10 में 5 हो, इस तरह क्या, या 10 फिफ्थ वाले में 5 हो, ये रैंडमली है, ठीक है। और स्प्लिट 2 में हो सकता है लास्ट 20 हो। तो आप दो मुख्तलिफ डेटा सेट लेते हैं, उसको आप क्या करते हो, ट्रेनिंग सेट और टेस्ट डेटा में कन्वर्ट करते हो। तो मे बी स्प्लिट 1 आपको बेड परफॉर्मेंस दे, सेकंड स्प्लिट आप करते हो जिसमें आप ट्रेनिंग सेट एक रखते हो, टेस्ट सेट दूसरा रखते हो, तो हो सकता है आपको ये स्प्लिट 2 गुड परफॉर्मेंस दे स्प्लिट 1 से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रैंडम स्प्लिट है। फर्स्ट टाइम आपने प्रोग्राम को रन किया, आपको टेस्ट एक्यूरेसी आई 95%, ठीक है। सेकेंड टाइम आपने रन किया, एक्यूरेसी आपके पास आ गई 30%। तो इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी इसमें 30% आ गई, इधर आ गई आपके पास 80%, क्योंकि ये गुड परफॉर्मेंस दे रहा है और ये बैड परफॉर्मेंस दे रहा है। ये एक्चुअली रैंडम स्प्लिटिंग के प्रॉब्लम है जो कि इरेगुलरिटी ऑफ डेटा की वजह से आ रहा है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन प्रपोज हुआ है या सोल्यूशन यूज करते हैं जिसको कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। जो वेरिएंस, स्टैटिस्टिकल वेरिएंस प्रॉब्लम इसमें आता है, जिसको कहते हैं कि आपका जो डेटा जो कुछ स्प्लिट पे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ पे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल वेरिएंस। जो डिफरेंस आ रहा है इसमें वेरी करता है। तो इस यूजुअली इसके लिए हम के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं डेटा को, इस तरह डेटा को मैनेज करने के लिए। सो के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन मींस split given data into k folds, k different fold, okay। एंड देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, फोल्ड शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर डेटा। ये फोल्ड आपने इंडिपेंडेंट रखने हैं एक दूसरे से, ठीक है। एंड अब इसमें आपने क्या करना है, जो आपके k-1 ट्रेनिंग सेट हैं उसको आपने k-1 को ट्रेनिंग के लिए यूज करना है, और जो एक है 8 से, फॉर एग्जांपल तीसरा सेट आपने टेस्ट के लिए यूज किया, बकाया सारे आपने ट्रेनिंग के लिए यूज कर दिए, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको फोर फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। अब इस केस में आपके पास के जो है वो 4 के इक्वल है। अच्छा, तो हम एग्जांपल के तौर पे फोर फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आपने क्या किया, आपने फोल्ड मींस वन, इसमें क्या है 1 2 4, ये 1 to 4 फोल्ड है। अगर आप इसको देखें तो डेटा को 4 फोल्ड में डिवाइड किया हुआ है हर हर सेक्शन में। तो आपके पास टोटल 4 सेट बन जाएंगे, क्योंकि 4 फोल्ड है तो एक सेट अगर आप रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास 4 मुख्तलिफ सेट्स बनते हैं। तो जो सेट 1 है उसमें आप क्या करते हैं कि पहले 3 फोल्ड को आप ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, लास्ट वाला फोल्ड फोल्ड 4 जो है वो टेस्ट के लिए यूज करते हैं। सेकेंड सेट में आप क्या करते हैं, फोल्ड 3 को टेस्ट के लिए यूज करते हैं, बाकियों को ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। एंड सिमिलरली सेट 3 और सेट 4 में आप फोल्ड 2 और फोल्ड 1 को टेस्ट के लिए रखते हैं, बाकी आप ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली जैसे ट्रेनिंग सेट, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ट्रेनिंग सेट में हमने 1 2 एंड 3 जो है फोल्ड ट्रेनिंग सेट के लिए रखा, और टेस्ट सेट फोल्ड 4 ने हमने
टेस्ट सेट के लिए रखा। फिर हमने आपका टेस्ट सेट 1 के लिए मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल n पे हमने मॉडल n पे हमने अप्लाई किया ट्रेनिंग सेट भी और टेस्ट सेट भी। तो इस तरह के रिजल्ट आपके पास आ गए हैं 3, 4। सेट 1 पे आपके पास 3 फॉर एग्जांपल, 4 एंड 5 आपको परफॉर्मेंस मिला टेस्ट सेट पे। ठीक है, मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल n पे n पे आपके पास 5 आ गया, मॉडल 2 पे 4 आ गया, n मॉडल 1 पे 3 आ गया सेट 1 पे। अच्छा, सिमिलरली जब आपने ट्रेनिंग सेट 412 जो फोल्ड आपने ट्रेनिंग सेट के लिए यूज किया, इन फोल्ड 3 आपने टेस्ट सेट के लिए किया, तो आपके पास अब मॉडल 1, मॉडल 2 और इन मॉडल आपने अप्लाई किया, टेस्ट सेट भी अप्लाई किया, ट्रेनिंग सेट भी अप्लाई किया, तो आपके पास ये डेटा आ गया। हम सपोज करते कि ये वैल्यू आ रही है। सेट 2 पे आपके पास 4 आ गया, सेट 2 मॉडल 2 पे आपके पास 1 आ गया और मॉडल n पे आपके पास परफॉर्मेंस 2 आ गई। ठीक है, फिर एक और फॉल्ट पे आपने परफॉर्मेंस चेक की ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट। ठीक है, तो आप मॉडल अप्लाई हुआ, आपने ये दोनों टेस्ट जो है मॉडल पे अप्लाई किया और आपके पास रिजल्ट आ गया 5, 2 एंड 3। इसी तरह सेट 4 पे आपने अप्लाई किया मॉडल ईच ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट और उसके पास आपके पास रिजल्ट आया 4, 3 एंड 2 और मॉडल 1, मॉडल 2 एंड अप टू मॉडल n। तो अगर आप देखें तो आपके पास इन दोनों का आप एवरेज कर लें, क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास 3, 4, 5, 4। तो आप सपोज करें कि मॉडल 2 आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं कंपेयर टू मॉडल 1 एंड मॉडल n, बिकॉज आपका जो मॉडल है वो आपको सारे सेट पे इक्वली बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपने मॉडल 2 को चूज किया आफ्टर 5 सेट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्रॉस वेलिडेशन का, क्या आपने ट्रेनिंग अपने के फोल्ड में डिवाइड कर दिया डेटा को और फिर आपने k-1 को ट्रेनिंग सेट के लिए रखा और 1 जो फोल्ड है वो आपने टेस्ट के लिए रखा और इस तरह आपने हर फोल्ड को इस तरह चेंज करना है। देन आपने आखिर में एवरेज आउट करना है कि कौन से मॉडल ने सारे फोल्ड्स पे एवरेज जो है बेस्ट रिजल्ट दिया आपको, तो वो मॉडल आप चूज कर लेंगे उस सारे डेटा सेट के लिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगर आप इसको देखें तो आपके पास 4, 1, 2, 3, तो आपके पास 5 to 7, 10 आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको सम करें तो आपके पास आ रहा है 3, 4, 7, 7, 5, 12 और 4, 16। मैं टोटल सम की बात करूं, अगर आप इसको एवरेज आउट करें तो आपके पास इसको अगर आप देखें तो ये आ रहा है 5 to 7, 10, 12। अगर आप इसको एवरेज आउट करें 4 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 3 आ रहा है। इसको अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.5 आ रहा है। इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ रहा है एवरेज एरर। तो ये जो मॉडल 2 है ये आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है कंपेयर टू अदर। तो आप मॉडल 2 को चूज करते हैं। मॉडल 2 का मतलब है कि जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, 0th ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 3rd ऑर्डर एंड 9th ऑर्डर, तो उसमें जितने भी मॉडल आपने यूज कर लिए, तो सपोज करें कि आपका मॉडल 2 जो था उसको हम कहते हैं कि वो nth और n=3 था, तो उसने हमें बेस्ट रिजल्ट दे दिए, तो इसलिए ये मॉडल हमारा ज्यादा बेटर है इस तरह डेटा सेट के लिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो हम क्रॉस वेलिडेशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। समरी क्या है? डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू k सबसेट्स एंड द होल्ड आउट मेथड इज रिपीटेड k टाइम्स। तो आपने k सबसेट में डिवाइड किया और आपने k टाइम्स उसको रीशफल किया टेस्ट सेट
के लिए और ट्रेनिंग सेट के लिए। Each time one of the k subset is used as the test set and the other k-1 subset are put together to form a training set. तो आप एक सेट को ट्रेनिंग के लिए टेस्ट के लिए यूज करते हैं और बाकियों को ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। देन द एवरेज एरर अक्रॉस ऑल के ट्रायल इज कंप्यूटेड। आप सारे जितने भी अब डेटा सेट्स आपके पास चेंज हो गए तो सारे सेट पे आपका जो एवरेज एरर मिनिमम आ रहा है वो चीज आपका चेक करते हैं कि मेरा जो है वो टारगेटेड मॉडल है। द वेरिएंस इज रिड्यूस्ड एज के इज इंक्रीज। तो इसमें एक एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। जो आपके पास वेरिएशन आ रही थी अमंग डिफरेंट रैंडम स्प्लिटिंग, वो एक्चुअली एवरेज आउट हो गया सारे 4 या 5 मॉडलों से या एन मॉडल की फोल्डिंग और सेट बनने से। ठीक है, तो आपका जो वेरिएंस है वो एवरेज आउट से रिड्यूस हो गया। एडवांटेज क्या है? लेस डिपेंडेंट ऑन हाउ द डेटा गेट्स डिवाइडेड। तो क्रॉस वैलिडेशन का फायदा ये है कि अगर डेटा आपका जितना भी रैंडमली या इम्बैलेंसिंग हो उस पे, तो अगर आप ये क्रॉस वैलिडेशन यूज करेंगे तो आपका ये जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि आपने एवरेज या क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू एवरेज कॉन्सेप्ट लेना है या एवरेज आउट करना है उस वेरिएंस को। Every data point gets to be in a test set exactly once and gets to be in a training set k-1 time. तो इसका एक और फायदा ये हो गया, जो कि आपका डेटा वेस्ट हो रहा था, जो टेस्ट सेट में आ रहा था लेकिन ट्रेनिंग सेट में नहीं आ रहा था, तो क्रॉस वैलिडेशन से वो आपका टेस्ट डेटा सेट में भी आ गया और ट्रेनिंग सेट में भी आ गया। तो काइंड ऑफ उसने कंट्रीब्यूट किया लर्निंग में। डिसएडवांटेज इस मॉडल का क्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, क्योंकि आपने डेटा को के फॉर्म में डिवाइड किया, तो आपकी ये जो के टाइम प्रोसेस हो रहा है ये एक्चुअली आपका टाइम और रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है। बट अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो यू कंप्रोमाइज विद टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सर ये क्रॉस वैलिडेशन सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे इंप्लीमेंट होगा? क्रॉस वैलिडेशन दोनों पे हो गया। अगर आप पीछे जाएं तो टेस्ट सेट में कभी फॉल्ट 3 आ रहा है, देखें टेस्ट सेट में कभी फॉल्ट 4 आ रहा है, कभी आपका फॉल्ट 3 आ रहा है, कभी आपका फॉल्ट 2 आ रहा है, कभी आपका फॉल्ट 1 आ रहा है। तो इट मींस ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्रॉस वैलिडेशन मींस डेटा की जो जो पॉइंट आपका ट्रेनिंग सेट में आ रहा है वो टेस्ट सेट में भी आएगा, बट इनमें वो एवरेज आउट हो जाएगा। सर तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी ट्रेनिंग और टेस्टिंग की? ओवरलैपिंग नहीं है ना। आप क्या करते हो, अगर आप इस एग्जांपल को देखें, जब आप ये वाला ट्रेनिंग डेटा ट्रेन कर रहे हैं, ये इसमें आपके पास फॉल्ट 4 आपका टेस्ट डेटा है, तो ट्रेनिंग में ये डेटा मिक्स नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट डेटा के लिए आपने यूज किया। बट यही फॉल्ट 4 आपने सेट 2 में जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, इसका मतलब है कि मॉडल 1 फॉर एग्जांपल मॉडल 2 आपने चूज कर दिया, तो ये सेट आपने बना लिया, इस पे परफॉर्मेंस मॉडल 2 ने क्या दिया आपको 4 दे दिया। अब फॉल्ट 4 टेस्ट सेट में आ रहा है, ट्रेनिंग सेट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जब मॉडल ट्रेन हो रहा है तो आपका टेस्ट वाला एक्सपोज नहीं हो रहा। बट अगेन जब उसने सेट 2 को दे दिया तो अगेन फॉल्ट 3 आपने टेस्ट सेट के लिए रहेगा, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट का इंटरमिक्सिंग का ना होना, वो इसमें अप्लाई होता है। बट आपने परफॉर्मेंस चेक कर ली हर पॉइंट पे, वो पॉइंट जो कभी ट्रेनिंग में आ रहा है और कभी टेस्ट में आ रहा है, तो आपने चेक किया कि इस पॉइंट पे क्या रिजल्ट आ रहा है। प्रॉब्लम आंसर आपको समझ आई जो मैं कहना चाहता हूँ? तो ये इंडिपेंडेंट रिजल्ट आपको दे रहा है ना, एक्चुअली इंडिपेंडेंट रिजल्ट ईच टाइम दे रहा है। तो इंडिपेंडेंट रिजल्ट के बाद हर फॉल्ट हर सेट आपको इंडिपेंडेंट टेस्ट पे भी रिजल्ट दे रहा है और ट्रेनिंग सेट पे भी दे रहा है। फिर चारों का आपने एवरेज निकालना है कि चारों मॉडल जिसने इंडिपेंडेंटली है, मुझे फॉर एग्जांपल मॉडल 2 ने फर्स्ट टाइम 4 दिया, नेक्स्ट टाइम 3 दिया, नेक्स्ट टाइम अगेन 4 दिया, नेक्स्ट टाइम उसने 5 दिया। तो मॉडल की बात हो रही है, सेट की नहीं बात हो रही। तो इसको जब आपने एवरेज आउट किया तो आपने डिसाइड किया इस एवरेज रिजल्ट पे कि सेट जो आपका मॉडल 2 है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, चाहे डेटा का नेचर कैसा भी हो। कोई कंफ्यूजन है इसमें?
नहीं सर क्लियर है सर। ये सेट 1 2 3 4 जो है सर ये हिट एंड ट्रायल वाले मेथड है, और हर टाइम हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका मतलब सारों के साथ फिर एवरेज लेना पड़ता है, मतलब ये हिट एंड तो ट्रायल आखिर वाला में मेथड। जब नहीं, ये थोड़ा इसको आपने क्या किया, आपने डेटा को 4 फोल्ड में डिवाइड किया। इसको आप ऐसे समझे कि आपके पास 100 यूनिट डेटा है, तो आपने 25 यूनिट के 4 यूनिट्स बना दिए अपने डेटा के। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी सर। आपके पास 100 यूनिट ऑफ डेटा है। ठीक है, आपने क्या किया, 1 to 25 जो है इसको आपने फोल्ड 1 कह दिया, 26 to 50 आपने फोल्ड 2 कह दिया, 51 to 26 को आप 76 को आपने फोल्ड 3 कह दिया, एंड 76 to 100 आपने फोल्ड 4 कह दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एक सेट बनाया जिसमें आपका F1 F2 F3 और F4। तो आपने डिसाइड किया कि मैं F4 को टेस्ट के लिए यूज़ करूंगा, बाकी तीनों मैं ट्रेनिंग के लिए यूज़ करूंगा। ठीक है, तो इसका जब आपने परफॉर्मेंस चेक किया तो आपको इस एरर दिया, 4 एरर दिया। अगेन नेक्स्ट टाइम आपने F2 को चूज़ किया कि मैं इसको टेस्ट के लिए यूज़ करूंगा, रिजल्ट इंडिपेंडेंट आ रहा है, लेकिन जब आपने टेस्ट का जो डेटा है वो चेंज किया है, तो आपने F1 F3 F4 को ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया और F2 को आपने टेस्टिंग के लिए यूज़ किया। तो आपने चेक किया अगर मैं इस तरह करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो 3 आ रहा है। सिमिलरली जब आपने F1 को टेस्ट के लिए रखा और बाकी तीनों के लिए को ट्रेनिंग के लिए रखा तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 5। तो जब आप इनको एवरेज करते हैं तो एवरेज आपको अराउंड 4 3.8 और 4.8 रिजल्ट दे रहा है। तो आप कहते हो कि मॉडल 2 जो है वो मुझे बेटर रिजल्ट दे रहा है, चाहे डेटा को मैं कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो अब इसमें हम वेरिएशन को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफाइन करते हैं क्रॉस वेलिडेशन में। एक को कहते हैं नो फिक्स फॉल्ट्स इन रैंडम डिवीजन। तो इसमें आप फिक्स फॉल्ट नहीं रखते बल्कि रैंडमली डिवीजन रखते हैं। जैसे मैंने आपको एक फिक्स डिवीजन बता दी जिसमें 1 to 25 फिर 50 26 to 50 और इस तरह मैंने फिक्स डिवीजन रखी है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप फोल्ड ऐसे बनाएं, पहले फोल्ड में 10 रखें, दूसरे में 20 रखें, तीसरे में 15 रखें, तो रैंडमली उसको आपने स्प्लिटिंग रखनी है। इसको कहते हैं नो फिक्स फोल्ड्स इन रैंडम डिवीजन। ठीक है, is regular CV या क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिट इनटू फोल्ड्स एंड शफलिंग फोल्ड्स। तो इसमें आप फोल्ड को शफल करते हैं। ठीक है, नो स्प्लिट इनटू फोल्ड्स एंड रैंडमली डिवाइडिंग द डेटा इनटू टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेट के डिफरेंट टाइम्स। तो इसको नो फिक्स फोल्ड्स एंड रैंडम डिवीजन कहते हैं। एक है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। एक्सट्रीम केस ऑफ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, तो आप क्या कहते हो कि एफ डेटा, इस केस में क्या होता है कि आपका डेटा साइज जो है वो इन है, तो आपके फोल्ड का साइज भी इन होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका जैसे 100 डेटा यूनिट्स को मैंने 4 में डिवाइड किया। ठीक है, तो जो लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अगर 100 यूनिट है तो 100 फोल्ड्स बना लो, हर डेटा को हर दफ़ा अप्लाई करो। So every data point except one is used for training and the remaining one is used for testing. तो इसका मतलब है कि पहली दफ़ा आपका 100 यूनिट जो है वो टेस्ट के लिए यूज़ हुआ, बाकी 99 आपने ट्रेनिंग के लिए यूज़ की। तो आपने चेक किया इस तरह, फिर 51, इस तरह 25, 27 और इस तरह रैंडमली आप हर पॉइंट को चेक किया, एवरेज आउट किया परफॉर्मेंस को, जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिया वो आपका मॉडल है। ये क्लियर है, ये दो क्रॉस वैलिडेशन मेथड्स। तो ये जो लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन है ये आप इन टाइम्स रिपीट करते हैं, क्योंकि आपके पास के फोल्ड के जो आपने चूज किया वो इन की इक्वल किया, इन आपके पास
पॉइंट से. That's all about your cross validation.